important notice, and that important notice is that today evening we have posted a Google form related to the start of offline college. That is, regular lectures can be conducted in the college as per the university. University has issued us a notification that we need to check with students whether they are ready for attending regular classes in the college from 15th of February. Just to check how many students are interested to attend regular classes in college from 10 a.m. to 5 p.m. from 15th of February onwards. We have posted that Google form. I hope that everyone has filled. In case if you have not filled, it will take hardly half a minute to fill that form. Only what you have to fill is that only one question has been asked: if you are willing to attend the regular colleges, regular lectures in the college from 15th of Feb. So you have to say either yes or no. No means that you want to continue the online lectures, and yes means that you are ready to come to college and for attending the regular classes or regular lectures which we will be conducting in the classroom. So if you have not filled, please fill this form at the earliest. If you have say if you have made a parallel group, informal group, we have created a formal group. For the time being, we have restricted the authorization to students. We have not allowed the student to post anything on the group, but later on we will definitely make you allow that you can also share your thoughts on this formal group itself. But at the beginning, we have put this restriction. Very soon we will be waiving off this restriction from the official group also. So my request would be that in your informal group, just those who are not attending today's lecture, just inform them to fill that form at the earliest, so that we will be coming to know that how many students are interested in regular lectures in the classes in the college, and accordingly it will help us to plan for those lectures, right? So that was an important notification which I need to share with you. And the second notification is related to your scholarship forms, scholarship or EBC forms. We have mailed you and we have posted on the WhatsApp also, but it is not posted on the regular official WhatsApp group. But what we have decided is that each and every mentor will be sharing this information on his or her mentees group. So I have already posted, and very soon the other mentors will also be posting the notices or the guidelines related to EBC and scholarship form, how you have to fill the form. There is no, we are yet to receive any deadline from the government regarding that what will be the last date for submission of these forms. But we would suggest you that you should fill at the earliest these forms, because what happens is, as the last day comes in, there are certain problems at the end of scholarship section. There are, say, you may find some server problem, you may find some other problem. So as very few students will be filling up the form now, we would suggest that if you fill this form very maybe by tomorrow or day after tomorrow, it will be convenient for you, it will be easier for you, and you will be able to fill it within a very short period of time. We have also shared the contact details of a faculty, that in case of any query related to the filling and submission of
your scholarship form or EBC form, you can contact that faculty of the college. So that was related to our to important notification. And now we will move on to our lecture. That is the law of Contract Act. So under Contract Act, we had discussed yesterday various types of contract, and plus what are the various void agreements, 10 void agreements that we had already discussed. So if you have any query, please stop me and you can ask your query. Right? Now, before we start with the session, I would like to share my thoughts about online teaching also. That in class, we can read the faces of the students. So it is easier for a teacher to understand whether whatever he or she is teaching is understood by the class or not. But when it comes to online teaching, more or less, it becomes monotonous, more or less, it becomes less interactive. Because what we have realized so far is that very few students are interested to participate in discussion. So we would suggest that to make the lectures more interesting, to make the lecture more interactive, more and more students should raise their queries. Right? तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछेंगे, उतना ज्यादा आप भी लेक्चर में इन्वॉल्व होंगे और उतना ज्यादा हमें भी इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा. नहीं तो क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा और वी आर डीलिंग विथ अ टेक्निकल सब्जेक्ट विच इज लॉ. अब लॉ में जो डेफिनेशन है या जो मीनिंग है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो पाता. तो जब हम लोग किसी एक्ट को पढ़ते हैं तब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना पढ़ने के बाद कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे या फिर बोर होने लग गया. तो ये ना हो, इसके लिए जितना ज्यादा हम दोनों में इंटरेक्शन रहेगा, दोनों पार्टीज, अब एक पार्टी मैं हूं और दूसरी पार्टी आप सब है, तो हम दोनों पार्टीज में तो ऑफर तो मैं दे रहा हूं, मेरी तरफ से प्रपोजल है कि आई वांट टू मेक माय लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग. नाउ इट इज अप टू यू टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. Otherwise, what I will assume that you have already accepted my proposal. Right? तो acceptance, जैसे कल ही हमने देखा कि silence is not considered as acceptance to the proposal. तो silence की जगह जितना ज्यादा interaction होगा उतना ज्यादा lecture interesting रहेगा. Right? So we will start with the session now. So when we were discussing certain essential elements of a valid contract, at that particular time, we had discussed that one of the important element of a valid contract is called as lawful consideration. Now, lawful means anything which is according to the provisions of law. जो भी लीगल है, जो भी लॉ के नियमों के अनुसार है, वो सब क्या है, लॉफुल है. कंसिडरेशन का भी मतलब हम लोगों ने देखा था तब. कंसिडरेशन मतलब कि बदले में दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. ज्याला आपण मराठीत मोबदला म्हणतो की दोन्ही पार्टींना काही ना काही बेनिफिट झालं पाहिजे. दॅट इज कंसिडरेशन. वन पार्टी इज गेटिंग समथिंग in return, whereas the other party is also getting something in return. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे. जैसे अगर मिस्टर ए कार बेच रहे हैं मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को कार मिलेगी, मिस्टर ए को अगर वो 1,00,000 रुपए में बेच रहे हैं तो उनको 1,00,000 रुपए मिलेगा. कार बेचना इंडिया में कानूनन माना गया है.
लॉफुल माना गया है, लीगल माना गया है, इसीलिए यहां पर we will assume that there is a lawful consideration. Mr. A is getting 1 lakh rupees and in return Mr. B is getting car of Mr. A. Lawful consideration. But the heading of this slide says exception to no consideration, no contract. Right? वहां पे हमने ये देखा कि अगर ये 10 एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। तो अगर कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में से मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में सबमिसिबल नहीं है। पर यहां पर एक रूल है, एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन we will be discussing today under no consideration, no contract. And we will be discussing the 5 listed point on the slide, that if these points are present in a contract, then we will assume that the contract, irrespective of no consideration received by one of the party to the contract, still the contract will be called as a valid contract. So first point we will be taking up is promise made on account of love and affection. So any promise which is made by one party to the other party because of love or affection towards that party, so that contract is called as a valid contract, irrespective of no consideration involved in this. यहां पर क्या हो रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर कुछ देती है, कुछ प्रॉमिस करती है, दूसरी पार्टी बदले में कुछ भी प्रॉमिस नहीं करती है, पर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जैसे कि सपोज मिस्टर ए is father of Mr. B. Now Mr. A, out of love and affection towards Mr. B, who is son of Mr. A, तो Mr. A father है, Mr. B उसका बेटा है। अभी फादर अगर विल लिखते हैं और विल में प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देते हैं, तो यहां पर बेटे को तो प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब बेटे को कंसीडरेशन यहां पर है। फादर को कुछ मिल रहा है क्या? फादर को कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले हमने क्या देखा कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तभी कंसीडरेशन। यहां पर 5 ऐसे पॉइंट है जहां पर एक पार्टी को शायद कुछ मिलता है, दूसरी पार्टी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कंसीडरेशन वैलिड होगा, फिर भी वो कंसीडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब फादर क्यों अपने बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करते हैं, वो उनका खुद का बेटा है, वो चाहते हैं कि उनके बाद उनकी सारी कमाई हुई दौलत उनके बेटे को ट्रांसफर। वो ये नहीं चाहते कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए इसको ट्रांसफर करूंगा तो उसमें से 50 लाख अगर ये मुझे देगा तभी मैं वो ट्रांसफर करूंगा। फादर क्यों अब 1 करोड़ रुपए की जायदाद बेटे को ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्योंकि बेटे के प्रति वो प्रेम है उनको। तो बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, इफ द प्रॉपर्टी, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू between two parties, then that contract is called as a valid contract, right? अब यहां पर इसी केस में हम हस्बैंड वाइफ को भी ले सकते हैं। अगर हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी वाइफ को देना चाहता हूं, और अगर ये रिटन एग्रीमेंट होता है, वो विटनेस उसको साइन करते हैं, तो ये जो एग्रीमेंट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वैलिड कहलाएगा। वाइफ को हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी मिली, हस्बैंड को बदले में कुछ नहीं मिला, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों वैलिड है?
कि बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन हस्बैंड हैज मेड दिस कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज वाइफ. अब यहां पर what I will be now doing is, as and when I will find interesting cases related to these points, I'll start discussing with those with these cases also, right? तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो केस है 1900 का. बहुत पुराना केस है, 125 साल 120 साल पुराना केस. Now this case is between Rajlakhi Devi versus Bhutnath. राजलकी देवी वाइफ है और भूतनाथ हस्बैंड. इन दोनों का एक केस हुआ, बहुत फेमस केस है 1900 का. अब जैसे हमने देखा कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन and which is not having consideration for one party, that contract is also accepted by law. That is also considered as a valid contract. अब इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ. हस्बैंड और वाइफ के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था. अब एक दिन इसी झगड़े के दौरान गुस्से में आके हस्बैंड ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर कर दी. रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ और वो प्रॉपर्टी वहां पर हुई. बाद में हस्बैंड ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया. रिवोक मतलब कैंसिल कर दिया. जब वाइफ इसके अगेंस्ट कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दिया. अब कोर्ट का इस डिसीजन के पीछे यह कहना था कि एज दिस एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स द अदर पार्टी. ये कब मान्य माना जाएगा कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके नाम पर कुछ कर रही है, पर वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, क्योंकि लव और अफेक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. अब यहां पर क्योंकि दोनों में झगड़ा था, अक्सर झगड़ा होता रहता था, लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व कोर्ट को नहीं दिखा, इसीलिए कोर्ट ने जो फैसला था वो हस्बैंड के फेवर में दिया. सो दैट इज लव एंड अफेक्शन. सो लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. Now the next point is promise for compensation of voluntary services. Promise for compensation. Compensation भी यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि मुबदला उसको बोल सकते हैं, या नुकसान भरपाई हम लोग उसको बोल सकते हैं. Compensation of voluntary services. Voluntary मतलब कि बिना बताए हुए खुद से अगर हम कुछ करते हैं तो वो वॉलेंटरी है. मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरा आज लेक्चर है, मैं वॉलेंटरीली अगर लेक्चर लेने के लिए जाता हूं, मैं अपने आप अगर लेक्चर लेने के लिए जाता हूं ये देख के कि क्लास में कोई नहीं है, तो ये क्या है कि आई एम वॉलेंटरीली गोइंग टू द क्लास टू टेक द लेक्चर. सो दैट इज वॉलेंटरी. अब यहां पर अगर कोई वॉलेंटरीली सर्विस देता है और दूसरी पार्टी अगर ये प्रॉमिस करती है कि आपकी इस सर्विस के बदले मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं या चाहती हूं, देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए अपने ऑफिस की तरफ पैदल जा रहे थे. जाते जाते उनकी जेब फटी हुई थी. उनकी जेब से उनका वॉलेट नीचे गिर गया. कुछ दूर चलने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका वॉलेट नीचे गिर गया. वो ढूंढने लगे वॉलेट. तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया और उसने उन्हें उनका वॉलेट थमा दिया कि सर आपका वॉलेट पीछे गिर गया था, मैंने देखा तो ये आपका वॉलेट.
अब ये जो सर्विस है वो लड़के ने जो दी है, वो लड़के को मिस्टर ए ने बोला नहीं था। यहां पर वो लड़के ने देखा कि मिस्टर ए का वॉलेट गिरा है, दूर से देखा उसने, वो गया, उसने वॉलेट उठाया और वॉलेंटरीली उसे ऐसा लगा कि जिनका वॉलेट गिरा है वो ढूंढ रहे हैं, तो इमीडिएटली इसने देना चाहिए। तो वो खुद से होके मिस्टर ए के पास जाता है और उन्हें कहता है कि सर ये आपका वॉलेट जो पीछे गिर गया था। अब मिस्टर ए अगर खुश होके अब मिस्टर ए अगर खुश होके promises to compensate this boy with ₹1000। मिस्टर ए बहुत खुश हो जाते हैं that this boy has voluntarily come in and he has returned my wallet which contained say 10,000 rupees. Now Mr. A wants to compensate the efforts of this boy who is called as Mr. B. So he promises him to give 1,000 rupees. अब यहां पर एक ही पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, और कौन सा बेनिफिट है वो? वॉलेंटरी सर्विस, जो सर्विस से पहले मिस्टर बी को नहीं पता था कि अगर वो पर्स वापस कर रहा है तो उसे 1,000 रुपए बदले में मिलेंगे। अगर पहले से पता होता तो इट इज नॉट वॉलेंटरी सर्विस, it is not compensation of voluntary service. Compensation of voluntary service means when the person who is helping the other person doesn't know that because of his good effort he will be benefited by the other person. जब उसे नहीं पता है कि उसकी इस अच्छी हरकत के लिए शायद उसे इनाम मिलेगा, तब वो वॉलेंटरी सर्विस। अब ये 1,000 रुपए देना जब एक बार प्रॉमिस किया है, तो यहां पर मिस्टर ए को मिस्टर बी को 1,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। और अगर वो नहीं देते हैं और मिस्टर बी जो लड़का है वो अगर कोर्ट में केस करता है, तो यहां पर मिस्टर ए को कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि आपने उसकी वॉलेंटरी सर्विस के लिए अगर प्रॉमिस किया है तो आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज promise for compensation of voluntary services. Now next point is promise to pay any time barred debt. अब आप लोग फाइनेंस के लेक्चर्स कर रहे हैं और आप लोग मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के भी मैनेजेरियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स कर रहे हैं, तो आई होप दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस टर्म डेट। डेट का क्या मतलब है? एनीवन? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ so that I will also come to know that I am talking to a live class. Yes, anyone can unmute himself, herself, and just let me know the meaning of term debt. DEBT. Here Debit. D. Huh? Sorry, Debt. but debit. Debit. Anything else? Debt. Debt means kya? What is debt? Debt Kind of is something loan. we have to pay. हाँ, debt Kind of मतलब which you That have to we are pay. liable to pay. very good. So a kind of say loan which is we are liable to pay. ठीक है, कर्जा जिसे हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कर्ज, कि अगर मैंने मिस्टर ए से 1,000 रुपए कर्ज लिया है, 1,000 रुपए उधार लिया है एज लोन, देन what is my responsibility? That I have to return that amount within time frame which I have promised Mr. A. That is debt, right? So debt. अब टाइम बार्ड डेट, टाइम मतलब जब भी हम कर्जा लेते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए लेते हैं, राइट? एक उसमें समय सीमा होती है कि 1 महीने में मैं रिटर्न करूंगा, 1 साल में मैं रिटर्न करूंगा, 2 साल में मैं रिटर्न करूंगा, जो भी है दोनों पार्टीज के बीच में जो भी प्रॉमिस होता है। जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि
कोई भी टर्म एंड कंडीशन जो लॉफुल है वो क्रिएट की जा सकती है दो पार्टियों के बीच। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 1 लाख रुपए का कर्जा है तो हमेशा 1 महीने के अंदर ही रिटर्न होना चाहिए। 10 लाख रुपए का अगर कर्जा इन्वॉल्व है ए और बी के बीच में तो वो 10 साल में ही होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं। अब टाइम बार्ड डेट मीन्स ऐसा लोन, ऐसा कर्ज जिसे वापस करने की, जिसे रिटर्न करने की टाइम लिमिट लीगली खत्म हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम बार्ड डेट। 1 साल के लिए लिया था, 5 साल हो चुके हैं, पर रिकवरी नहीं हुई है, पर नहीं मिला है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम बार्ड डेट। अब जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड का यूज क्या होता है अभी हम सबको पता है, शायद हमसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा, बिकॉज ये जितना भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी या फिर जो भी इजी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो हमसे ज्यादा जितनी भी यंगर जनरेशन है, दे आर मोर कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। शायद आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो क्रेडिट कार्ड है, अगर उसके ऊपर हमने खर्चा तो कर दिया, अब खर्चा करने के बाद वो अमाउंट हमारे को पे करना है। अब वो अमाउंट पे करने की भी एक निश्चित सीमा होती है, जिसे 3 साल से लेके 10 साल तक की वो सीमा है, कि 10 साल के अंदर, किसी किसी केस में 7 साल के अंदर अगर हमने वो पैसा नहीं भरा, अगर हमने वो पैसा नहीं भरा और कंपनी हम पर केस नहीं करती है, अभी सपोज सीमा खत्म हो रही है, उसकी लिमिट खत्म हो रही है कि 10 साल के अंदर कंपनी ने हमसे वो पैसा वसूल करना चाहिए, पर कंपनी ने किया नहीं। कंपनी को 11वें साल में पता चला कि हमारे पास कंपनी का बकाया 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है या 50,000। अब कंपनी जाती है कोर्ट में केस फाइल करने। कोर्ट केस फाइल नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम बार्ड डेट, कि लीगली जितना टाइम लिमिट था पैसा वसूल करने का वो खत्म हो चुका है, इसीलिए अब आप ये केस फाइल नहीं कर सकते। तो अगर जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया और 10 साल तक वो लोन चुकाया ही नहीं गया, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, वो भूल गए थे, उनको बाद में याद आता है, अब पता चला कि ये तो टाइम बार्ड हो चुका है, अब तो कोर्ट में भी ये केस स्टैंड नहीं होगा। अब यहां पर अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को एक प्रॉमिस करते हैं कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया था पर वो मैं नहीं दे पाया, अब मेरी कंडीशन अच्छी है, अब मैं 1 लाख तो नहीं पर 50,000 रुपए रिटर्न करना चाहता हूँ, तो ये जो रहेगा ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यहाँ पर भी एक ही पार्टी को अब कुछ मिल रहा है, दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, सो दिस will come under a promise to pay any time barred debt. Now next point is contract of agency. Now after this contract act, immediately we will be taking up with contract of agency, where we will be discussing the meaning of agency and the parties involved in agency. So any contract which is related to contract of agency is a valid contract even if there is no consideration involved in that contract. So that we will be discussing once we will be starting with contract of agency. Now the last point to be discussed is completed gifts. Completed gifts means completed means जब हमने गिफ्ट दे दिया है, जब हमने गिफ्ट दे दिया है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटेड गिफ्ट। जब मैं प्लान कर रहा हूं कि मुझे साई मंदिर में 1,000 रुपए का डोनेशन देना है, दिस इज अ प्लान्ड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट मीन्स
that I have already donated 1000 rupees as donation in Sai Mandir. So that is completed gift. So completed gifts means, gift में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को कुछ मिल रहा है, दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पर साई मंदिर में 1000 रुपए उन्हें मिले, जो भी संस्थान है, जो भी ट्रस्ट वो चला रहा है, उन्हें 1000 रुपए मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिला. तो यहाँ पर ये मैं कभी भी बाद में 10 दिन के बाद जाके नहीं बोल सकता कोर्ट में कि मैंने तो मन्नत मांगी थी, वो मन्नत पूरी नहीं हुई, अब मेरे पास रिसीट है, अब मुझे वो 1000 रुपए वापस चाहिए. तो कोर्ट मुझे क्या बोलेगा कि आपने जो पैसा दिया वो किसके अंडर हुआ? कंप्लीटेड गिफ्ट्स. और यहां पर जो रिलेशनशिप कोर्ट कोशिश करेगा मुझे बताने की, वो रिलेशनशिप है डोनर और डोनी रिलेशनशिप. डोनर को पहले से ही पता रहता है कि मुझे ये अमाउंट देना है या मुझे ये गिफ्ट देनी है, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा या कुछ मिलेगा. तो यहां पर फिक्स नहीं है, वो सिर्फ सोच रहा है कि ठीक है, अगर मैंने 1000 रुपए दिए तो शायद भगवान खुश होके मुझे 2000 का मुनाफा कराएंगे. पर अगर मेरा 2000 का मुनाफा नहीं हुआ तो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे 1000 रुपए वापस चाहिए, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डोनर एंड डोनर, राइट? So these are the 5 exceptions. If they are involved in any contract and there is no consideration involved, still the contract will be considered as a valid contract because it will be covered under exceptions. अपवाद बोलते हैं ना जिसे हम लोग मराठी में, वो. तो ये एक अपवाद है, ये 5 पॉइंट्स अपवाद हैं जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है. सो दैट वाज रिलेटेड टू no contract, no consideration. Sorry, no consideration, no contract. If you have any query, you can stop me and we take up the query also. Yes, किसी को कोई क्वेरी रहेगी तो प्लीज पूछिए. कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्लीज आई विल से कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग अभी अपनी फीस भर रहे हैं, राइट? 85,000 फीस है फर्स्ट ईयर की, 85,000 फीस है सेकंड ईयर की. तो योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग से 1 लाख, कितना हो गया वो 70,000 प्लस अदर खर्चा, ये वो सब पकड़ के शायद 3-4 लाख रुपए 2 साल में खर्च होने वाले हैं पेरेंट के आपके ऊपर. अब जब हम लोग बाजार में जाते हैं, एक अगर मोबाइल भी लेते हैं 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, जो भी, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पूरा पैसा वसूल होना चाहिए. मोबाइल इतना अच्छा हो कि वो 10,000 मेरे पूरे वसूल होने चाहिए. उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसका टच स्क्रीन अच्छा होना चाहिए, उसकी रैम अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए. यहाँ पर हम लोग सब वसूल करना चाहते हैं. सेम इज द केस शुड बी इम्प्लीमेंटेड हियर ऑल्सो. अगर पेरेंट 4 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कॉलेज से आप वो पूरा पैसा वसूल कर सके. जितना ज्यादा आप लोग हमारे को क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज्यादा समझो आपके पैसे वसूल हो रहे. और जितना ज्यादा अभी अभी तक तो, अभी जैसे लास्ट सेमेस्टर जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, अभी पहला एक नेक्स्ट स्लाइड से पहले एक छोटा सा मैं हमारा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि व्हेन कोरोना स्टार्टेड last year in March, immediately the colleges were shut down, and from April or from May, we had a notification from the university that we should start with online lectures. As for most of us,
and for the students also, for most of the students also, it was the first time of online teaching. So we had some problems related to how to schedule a class, how to conduct a class, how to share a screen, how to mute, how to unmute. Various problems we had faced, and we slowly we tried to overcome those problems. Same problems were faced by the students also. So first week, the response was very good. We both, the teachers as well as the students, they enjoyed the sessions because both were learning something new. Later on, when time passed, say after 15 lectures or after 20 lectures or after a month, then we started realizing that slowly the interest of the students is coming down. And we started to make an experiment also, that in during our lecture we used to take up a random name and ask a question to that student, just to ensure that the student is actively present, he is fully present in the lecture. And later on, we found that in our class, most of the students were not actively present. They had logged in and lecture was going on, and कोई शायद म्यूजिक सुन रहा है, कोई शायद टीवी देख रहा है, कोई बाहर है। तो ऐसा भी बहुत कुछ हुआ। तो यहाँ पर हम लोग किस लिए ये सब शेयर करना चाहते हैं आपसे, कि अगर आपको पूरा पैसा वसूल करना है, तो फिर इतना पैसा खर्च करके अगर सिर्फ लॉगिन करके आप बाहर चले जाएँगे, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर good at your end, because your parents are investing their hard earned money in your education. And this we realized very shortly when we sent students for interviews. अब इंटरव्यू में मैं कुछ क्वेश्चंस, आई विल नॉट बी शेयरिंग द नेम्स, आई विल जस्ट शेयर सम इंस्टेंसेस कि क्या हुआ इंटरव्यू में। तो एक इंटरव्यू में जब हमने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा, तो वहां पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम बताइए। XYZ नंबर स्टूडेंट्स गए थे। हमारे को ऐसा फीडबैक मिला कि सब्जेक्ट के नाम्स भी ज्यादातर स्टूडेंट्स बता नहीं पाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्टार्ट में तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था, बाद में पता चल गया कि अरे किसी को पता ही नहीं चलता है, हम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा अटेंडेंस उधर मार्क हो रहा है, लॉग इन करो, छोड़ दो। तो ये बाद में जब हमारे को फीडबैक मिला, जब हम लोगों ने काफी चीजें बच्चों को पूछा, ये हुआ वो हुआ, तब पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग तो अभी भी आप लोगों को वही सजेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जब पेरेंट्स इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, try to increase your number in attending the lectures. जब हम लोगों ने लेक्चर शुरू किए, तब 50s में स्टूडेंट्स थे, अब 30s में स्टूडेंट्स आ गए। तो ऐसा ना हो कि फिर और कम हो जाएगा लेक्चर्स, मतलब और स्ट्रेंथ कम हो रही है, और अचानक से एग्जाम्स आ गए और एग्जाम में फिर टफ हो रहा है, या एग्जाम में तो पास हो गए, पर वहां पर किसी ने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट का नाम भी बताना नहीं आता। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे, राइट। सो ये तो था इंसिडेंट्स जो मैं चाहता था कि आप लोग भी जाने, बिकॉज जितना ज्यादा नंबर रहेगा स्टूडेंट्स का, हमने आपको अटेंडेंस भी भेजी है, 90+ स्टूडेंट्स हैं क्लास में। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स रोज अटेंड करें। This Saturday also we are planning
session of an outside expert person who will be delivering session on export and import management. तो हम हमारी तरफ से सब करने की कोशिश कर रहे हैं. हम प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्टर सर और हमारे जो फाउंडर सेक्रेटरी मैडम है, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि हर सैटरडे को, every Saturday we have to invite an expert resource person who will be sharing his thoughts with the students on a particular topic. जैसे लास्ट सैटरडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज मार्केट था. अपकमिंग सैटरडे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट है. तो ऐसा नेक्स्ट सैटरडे को दूसरा कोई अच्छा लेक्चर हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे. तो हम हमारी तरफ से सब करने की कोशिश कर रहे हैं. हम लोग चाहते हैं कि आपके सजेशंस आए कि सर इसके ऊपर हमारे को लेक्चर चाहिए, ये टॉपिक के ऊपर हमारे को लेक्चर चाहिए. We will be very happy to organize more lectures for you, but we want it to come from your side. Regarding books, we have started issuing books. You can come to the college and you can issue books. ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, मुझे लगता है कि हमारी लाइब्रेरी भी देखी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारे बुक्स हैं. आप आके बुक्स भी इशू कर सकते हैं. जब भी आपको टाइम मिलता है, यू कैन कम डाउन टू कॉलेज, यू कैन डिस्कस योर डिफिकल्टीज, योर क्वेरीज विथ द कंसर्न सब्जेक्ट टीचर ऑल्सो. अगर आप यहाँ पर कुछ क्वेरी नहीं करना, रेस करना चाहते, आपको कुछ नहीं समझ में आया है, आई एम देयर इन द कॉलेज. यू कैन कम टू माई केबिन, you can discuss your query with me and we will be very 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 glad, very happy to resolve your queries. ठीक है. तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स एक इंटरेस्ट दिखाते हैं सीखने के लिए, राइट. सो ये अब हम दोनों के बीच में, हम लोग हमारा 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप भी अपना 100% दें, राइट. चलो अभी ये बहुत हो गया, हम लोग थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए थे. नाउ वी विल अगेन कम बैक टू आवर ट्रैक and we will start with a next slide called performance of contract. So last 10 minutes we will complete this slide. In case of any query, just unmute yourself and please note that we are very 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 much open to your suggestions also. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो फॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है उसका कंट्रोल हमने आपके पास अपने पास रखा है. इसका मतलब कि जो भी हम लोग डाल रहे हैं वो आपको फॉलो करना है. आप अपने सजेशंस हमारे तक नहीं पहुंचा सकते. आप लेक्चर्स के दौरान हमारे को रोक के अपने सजेशंस दे सकते हैं. बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूं, तो एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी आपका सजेशन है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि सर लेक्चर इस तरह नहीं, इस तरह कंडक्ट करेंगे तो और मजा आएगा, या फिर इस टॉपिक पे अगर ज्यादा लेक्चर्स होंगे तो और अच्छा लगेगा. ऐसा कुछ भी सजेशन, छोटा सजेशन भी होगा तो योर सजेशन इज मोस्ट वेलकम. We will check your suggestion. We will take your suggestion to our higher authorities also. And if our higher authorities approve your suggestion, definitely it will be implemented. Right? So please note. Now we will start with performance of contract. Now the term performance means that the parties to the contract have fulfilled or carried out their respective obligations arising out of the contract. तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि दो पार्टीज होती हैं. एक पार्टी कुछ करेगी, दूसरी पार्टी जो दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंप्लीट करेगी. ऐसा हर कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा है. अब सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट कि मिस्टर ए को अपनी कार बेचनी है और मिस्टर बी को मिस्टर ए की कार खरीदनी है. तो दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब मिस्टर ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तारीख
कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, जो प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, उस तारीख को, उस समय पे, उस जगह पे उन्हें अपनी कार मिस्टर बी को डिलीवर करनी है। अब ये हो गया मिस्टर ए का टर्म एंड कंडीशन, प्रॉमिस। मिस्टर बी अगर प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही मुझे कार मिलेगी मैं इमीडिएटली 1 लाख रुपए कैश आपको दे दूंगा, तो यहां पर क्या है कि दोनों ने अपना अपना टर्म एंड कंडीशन दोनों को पता है। अब सपोज हम लोग एक तारीख बोलेंगे कि अभी 15 फरवरी को एक डेट फिक्स हुई है कि मिस्टर ए कार लेके आएंगे और मिस्टर बी पैसे लेकर आएंगे, और दोनों एक दूसरे से, मिस्टर ए पोजेशन कार का मिस्टर बी को देंगे, मिस्टर बी 1 लाख रुपए कैश मिस्टर ए को देंगे, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल ओवर। जब दोनों भी अपना अपना टर्म पूरा कर देते हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म्ड। ये क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्म होना था दोनों पार्टियों के द्वारा, वो परफॉर्म हो गया। मिस्टर ए 15 तारीख को कार लेकर आ गए, मिस्टर बी 1 लाख रुपया मिस्टर ए को दे देते हैं और कार की चाबी, कार का पोजेशन, कार के पेपर्स अपने पास ले लेते हैं। तो दोनों ने जब पूरा कर दिया अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन, देन वी कैन कॉल दिस कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बहुत सिंपल है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स when both the parties to the contract have completed their obligation, have completed the responsibilities which were created, which were fixed in the contract. So Mr. A was supposed to deliver the car and Mr. B was supposed to pay cash 1 lakh rupees on receiving the key and papers and possession of the car to Mr. A. So when Mr. A gives the possession of car to Mr. B and when Mr. B hands over 1 lakh rupees cash to Mr. A, we will say that the contract between Mr. A and Mr. B related to sale of car is performed by Mr. A and Mr. B, and that is called as performance of contract, right? तो ये हो गया performance of contract. अब टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, एंड वी विल स्टॉप हियर। अब टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को दूसरा जो उसका शब्द है, जो टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज टेंडर। अब ये टेंडर, इसका यहां पर मतलब है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। नाउ दिस टेंडर इज नॉट the tender which we all know. अभी जैसे सड़क का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया है, उसका टेंडर पास किया जाता है, वो टेंडर अलग। यहां पर टेंडर का मतलब स्पेलिंग सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। वो टेंडर इज इनविटेशन फॉर बिड्स टू कंस्ट्रक्ट रोड, दैट इज टेंडर, that we all know. But now here tender means attempted performance. ठीक है? तो लॉ में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर वो वाला टेंडर जो, जिसे हम लोग मराठी में निविदा भी कहते हैं, वो टेंडर नहीं। यहां पर टेंडर का क्या मतलब है? यहां पर टेंडर का मतलब है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट? और अभी टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस में दो टाइप्स हैं, एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब, एक्चुअल मतलब सही में, राइट? कि एक्चुअली परफॉर्म हो गया। तो जैसे ही हमने जो पुराना वाला भी एक एग्जांपल लिया कि कार की सेल का, कि ए ने कार दे दी, बी ने 1 लाख रुपया दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन से टाइप के परफॉर्मेंस में आएगा? कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो चुका है, द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म, बट इफ यू वांट टू categorize this particular performance of contract, then in which category it will be categorized?
so it will come under actual performance कि मिस्टर ए ने पोजेशन कार की दे दी मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए कैश दे दिए मिस्टर ए को, तो यहां पर क्या हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रुकेंगे एंड अ बिट ऑफ होमवर्क फॉर यू, you have to read about what is attempted performance or tender and what are the different kinds of tender. One is tender of goods and services and the other is tender of money. तो ये आपका होमवर्क है। कल लेक्चर शुरू होने से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स ऑन दिस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट। तो कल आप लोग मुझे स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे इसके आंसर्स देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है अभी तक जितना भी हमने कवर किया है उससे रिलेटेड, तो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क मी। यस, बोलिए, किसी को कोई भी क्वेरी है, अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है तो you can definitely stop me, you can ask for another example, we are there। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि एक बार तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, अब बार बार कैसे एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं। आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार हम लोग आपको बताने के लिए तैयार हैं। सर टेंडर थोड़ा सा हाँ। कंफ्यूजन हुआ, एक बार कोई हाँ। और एग्जांपल अगर। हाँ, तो टेंडर को कंफ्यूजन में हम लोग थोड़ा सा रखेंगे, आप लोग भी पढ़िए, कल फिर इसको क्लियर करेंगे। टेंडर मींस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सिर्फ उसका एक मीनिंग बताऊंगा कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंडर। ठीक है, अब यहां पर हमारे को एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि टेंडर का जो मतलब हमें अभी तक पता है वो यहां पर नहीं है। यहां पर टेंडर का मतलब है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड मींस एक्चुअल में वो नहीं हुआ है, पर दोनों पार्टीज ने अटेम्प्ट किया है पूरा करने का, या फिर एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया है पर वो किसी वजह से पूरा नहीं। ओके, अभी इसका ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं दे ही देता हूं। अभी वही वाला कार का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब मिस्टर ए 15 तारीख को जो भी एग्रीड टाइम है, जो भी एग्रीड प्लेस है, वहां पर कार लेके आ जाते हैं। पर अब यहां पर क्या हो रहा है, मिस्टर ए अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए, राइट। अब मिस्टर बी वहां पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते, तो एक पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, किसी कारणवश दूसरी पार्टी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाई, तो ये क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ये होगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब दूसरा, मिस्टर ए कार लेके आ गए, मिस्टर बी 1 लाख रुपए लेकर आ गए, पर जब परफॉर्म किया जा रहा था, जब वो दे रहे थे 1 लाख रुपए, तब उन्होंने देखा कि कार के कुछ पेपर्स गलती से मिस्टर ए के घर पर ही रह गए। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ कि यहां पे नहीं हुआ। यहां पर कब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, जब नेक्स्ट डे कार के पेपर्स भी मिस्टर बी को मिलेंगे, तब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस कब होता है, जब दोनों भी पार्टी ने जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था वो सब खत्म हो गया है, वो दोनों ने अपना अपना पार्ट पूरी तरह से निभा दिया है, देन वी कैन से द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली परफॉर्म। तब तक वो क्या रहेगा, अटेम्प्टेड। और टेंडर का सिंपल मीनिंग है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट। समझ गए अभी आप? अटेम्प्टेड मतलब कोशिश तो की गई, अटेम्प्ट किया गया पूरा करने का, पर किसी कारणवश दोनों पार्टियां नहीं कर पाई, या एक पार्टी ने पूरा किया दूसरी पार्टी नहीं कर पाई। और एग्जाम्पल वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो, एंड just let me know
what is the meaning of tender of goods and services, and what is the meaning of tender of money. First, we will start with your explanations, and then I will take over this session when we will be starting tomorrow. I think the time will be 7 p.m. Right? Okay, so we will Okay, stop sir. here, dear students. Okay, so see you tomorrow evening at 7 p.m. for my lecture, right? And tomorrow again, till further changes, till further notice, the timetable will remain same. 2 lectures in the morning and 3 lectures will be conducted in the evening session. And immediately after my lecture, that is at 9, I'll be sharing the links and timetable of next day's lectures. Right? Sure. Okay. Thank you, everyone, and good night. Thank you, sir. Thank you, sir.